سر تیاریاں کیسی ہیں سر؟ الیکشنز کے لیے تیاریاں کیسی ہیں؟ ایک طرف تو خان صاحب جیل میں ہیں تو دوسری طرف پارٹی کی طرف سے کوششیں ہو رہی ہیں؟ پارٹی کو تو کوئی کام کرنے دیا نہیں جا رہا. پارٹی پر تو ہر قسم کی پابندی ہے. ہمارا ورکر جو ہے یا جیل میں ہے یا اس کو انڈر گراؤنڈ ہونے پر مجبور کیا ہوا ہے. اسی طرح یہاں تک کہ ہماری جو کمیٹیز ہیں، ایپیکس کمیٹی ہوئی یا سینٹرل کمیٹی ہوئی، ان کو بھی ان کے ممبران بھی جو ہیں وہ بھی کھلے عام کام نہیں کر سکتے. چیئرمین کو اور وائس چیئرمین کو قید میں رکھا ہوا ہے. تو اس لیے تو بہت بڑی ناانصافیاں ہو رہی ہیں. لیکن بہرصورت یہ بات ہم واضح کر دینا چاہتے ہیں، جو جتنی چیزیں ہے ظلم اور جبر ہو، یہ پارٹی ہر سیٹ پر الیکشن لڑے گی. پاکستان بھر کے ہر سیٹ پر ہم الیکشن لڑیں گے. اچھا خان صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کی درخواست مسترد کر دی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے، اور جیل میں ٹرائل کو آپ کیسے دیکھتے ہیں ایز اے قانون دان بھی، اور سائفر کیس کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، یہ جو سائفر کیس ہے میرے نزدیک تو بنتا ہی نہیں. یہ ایک جعلی کیس ہے، خام خواہ کا بنایا گیا ہے. اس کے پیچھے کسی قسم کی بھی واضح کوئی ایویڈنس نہیں ہے. جہاں تک اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی قابل قدر نہیں ہے، اور اس میں جو چیف جسٹس ہیں ان کا بھی رول کوئی اتنا اچھا نہیں رہا. مسلسل جو ہے یہ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف فیصلے دے رہے ہیں. لیکن بہرحال یہ معاملہ ہم انشاءاللہ سپریم کورٹ میں لے کے جائیں گے، اور ہمیں امید ہے کہ سپریم کورٹ نے ہمیشہ اوپن ٹرائل کے بارے میں کہا ہے، چاہے وہ ججز کا اوپن ٹرائل ہو، جیسے سپریم جوڈیشل کونسل میں، اس میں 2018 میں شوکت صدیقی اور فاروق عرفان کا میں وکیل تھا، اس میں بھی یہ فیصلہ کیا تھا. تو مجھے امید ہے کہ سپریم کورٹ اپنے پہلے فیصلوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں بھی اوپن ٹرائل کے لیے فیصلہ دے گا. اچھا خان صاحب یہ بتائیں کہ تحریک انصاف کے اوپر جو غیر اعلانیہ پابندیاں لگائی گئی ہیں، سرگرمیوں کی اجازت نہیں ہے، کیا آپ کی طرف سے کوئی اس سلسلے میں سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کی جائے گی کہ آپ کو بھی آزادی دی جائے اور آئین اور قانون کے مطابق آپ کو سیاسی سرگرمیوں جلسوں کی اجازت دی جائے؟ ہماری پٹیشن آلریڈی پینڈنگ ہے، اور بلکہ 25 مئی سے پینڈنگ ہے. عمران خان صاحب اس میں پٹیشنر ہیں، اور ہم نے یہ کہا ہوا ہے کہ جس قسم کا ظلم اور جبر کا اس وقت ماحول ہے، یہ اس طرح کبھی کوئی پارٹی کو کام نہیں کر سکتی. لہذا جو لوگوں کے بنیادی حقوق ہیں، جس کا جو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ جو ہیں وہی سب سے بڑی ڈیفینڈر ہیں، تو اس لیے ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم پوری طرح سیاسی ایکٹیویٹیز میں حصہ لے سکیں. جس طرح دوسری سیاسی جماعتیں سیاسی ایکٹیویٹی کر رہی ہیں، ہمیں بھی پوری طرح سے ایکٹیویٹی میں حصہ لینے دیا جائے، اور چیئرمین کو بھی رہا کیا جائے تاکہ وہ الیکشن کیمپین کو لیڈ کر سکیں. حامد صاحب، الیکشن کمیشن کی جانب سے 11 فروری کی تاریخ دی گئی ہے الیکشن کی. خان صاحب تک یہ خبر پہنچ چکی ہے؟ اگر پہنچ چکی ہے تو خان صاحب نے کچھ اعلان کیا ہے لائے عمل کے بارے میں؟ کچھ بتایا ہے کہ کس طریقے سے الیکشن کمپین کی جائے گی؟ کیا لائے عمل ہوگا پاکستان تحریک انصاف؟ دیکھیے، بات یہ ہے، پہلے جو اعلان کیا گیا تھا اس میں یہ کہا تھا کہ جنوری کے آخری ہفتے میں ہوں گی. آج پتہ چلتا ہے کہ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے 11 فروری کی تاریخ. اس کا مطلب ہے الیکشن کمیشن کے لیے درست نہیں ہے، اپنی تاریخیں بدل رہے ہیں بار بار. حالانکہ 90 دن تو 6 نومبر کو پورے ہو رہے ہیں. انہوں نے آلریڈی آئین کی خلاف ورزی کی ہے. 6 نومبر کے بعد کوئی بھی ڈیٹ دینا جو ہے آئین کی خلاف ورزی، لیکن یہ اپنی زبان پہ بھی قائم نہیں ہے. خود کہہ کر کے الیکشن کمیشن جو ہے الیکشن جنوری کے آخری ہفتے میں کرائے گی، آج یہ فروری کے مڈل میں لے گئے ہیں. تو کیا اعتبار ہے کہ یہاں بھی کھڑے رہیں گے کہ نہیں؟ سر، آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی ہر حلقے سے الیکشن لڑے گی، وہ ایک ہی صورت میں پاسبل اگر وکلا جو ہے وہ سامنے آئے. تو کیا خان صاحب نے اس حوالے سے آپ سے کہا کہ آپ لیڈ کریں پنجاب میں یا پاکستان میں؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ پارٹی ورکرز میں حصہ لیں گے، اور پارٹی کے وکلا کا پورا حق. سر، آپ کے الیکشن کے حوالے سے خان صاحب نے گفتگو کی کس الیکشن کے؟ سپریم کورٹ کے الیکشن ہوئے. دیکھیے، وہ معاملہ وکلا کا ہے. خان صاحب کی آپ نے باڈی لینگویج کیسی لگی ہے؟ بالکل ٹھیک، حوصلے میں ہے ماشاءاللہ، ہمیشہ کی طرح ان کی بڑی اسپرٹس میں ہیں، ہائی اسپرٹس میں ہیں. سر، جو ان کی صحت کے حوالے سے باتیں کی جا رہی ہیں، آپ نے کوئی ڈاؤن دیکھا؟
हैसियत के हवाले से बातें की जा रही थी। देखिए, ये बात हम सबको इसकी तशवीश है कि इमरान खान साहब पर पहले भी अटैम्प्ट हो चुकी हैं और अटैम्प्ट को सामने रखते हुए हम सब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले लोग बहुत इस बारे में फिक्रमंद हैं, क्योंकि इतने अरसे से उन्हें डिटेंशन में रखा हुआ है। और अगर हम देखते हैं कि मौजूदा जो मुसलमानों की पॉलिसी है उसके मुताबिक खान साहब की वाकई ही खतरात हैं, वो बड़े हौसले में हैं, लेकिन हम सबको इस बारे में काफ़ी तशवीश है। सर, आपका बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान में, आपके स्टूडेंट्स भी हैं जुडिशरी में। खान साहब ने कोई बात नहीं की कि कोई मुज़ाकरात का कोई हल निकाला जाए जिससे जो पार्टी में मुश्किलात हैं वो दूर हो जाए? देखिए, पार्टीज के दरमियान तो हमेशा बातचीत हो सकती है, बाकी कौन सी किससे बात करनी है ये तो वक्त के साथ साथ ही होगा, लेकिन अभी तक तो पार्टी के साथ सिर्फ जुल्म, ज़्यादती और जबर ही हो रहा है। और आपके सामने जितनी सियासी जमातें हैं उन्हें छुट्टी है, वो खुल के अपनी सियासी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, वो अपने दफातर खोल रहे हैं, इलेक्शन कैंपेन शुरू कर दी है। और हमारे जितने पॉलिटिकल वर्कर हैं उन सबको जेलों में बंद किया है या फिर वो मजबूर किया गया कि वो अंडरग्राउंड हो जाए। लिहाजा पार्टी को किसी तौर पर भी इवन प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा। एक तरफ एक पार्टी हेड को जो कि कॉन्विक्ट भी है, जिसके खिलाफ केसेस भी हैं, उसको लाया जाता है सरकारी प्रोटोकॉल देकर, और लाके वो प्रोटोकॉल के जरिए वो बातें करते हैं। ऐसे लगता था कि जैसे इनको वज़ीर आज़म उन्होंने पहले से डिक्लेयर कर दिया है भी इलेक्शन हो रहे हैं। एक तरफ तो ये हाल है, और दूसरी तरफ जो मुल्क का सबसे हरदिल अजीज लीडर है और वो पार्टी जो कि मुल्क में सबसे ज़्यादा पॉपुलर पार्टी है, उनको हर काम से सियासी अपनी एक्टिविटीज़ से रोक दिया गया है। तो बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी, ज़्यादती और जबर हो रहा है। खान साहब ये बताइएगा कि गुज़श्ता कई रोज़ से ये बात कर रही है कि खान साहब को इसको पॉइजनिंग की जा रही है और उनकी जान को खतरा है। इस हवाले से बताइएगा कि क्या इसमें सदाकत है कोई या ये प्रोपेगेंडा है? देखिए, हम सबको तशवीश है। हाँ, सब तो हौसले में वो तो नहीं कहते, ना कंप्लेन करते हैं, लेकिन हम सब जो सियासी के कुलीग हैं, हम सबको ये तशवीश है क्योंकि उनके पहले भी उनकी ज़िंदगी पर अटैम्प्ट हो चुकी हैं और इतने अरसे से जो है उनको पाबंद सलासन रखा हुआ है। तो इसलिए ये सारा पार्टी के वर्कर्स जो है, पार्टी की लीडरशिप जो है, इस बारे में फिक्रमंद है। सर, तैयारियां कैसी हैं सर? इलेक्शंस के लिए तैयारियां कैसी हैं? एक तरफ तो खान साहब जेल में है, तो दूसरी तरफ पार्टी की तरफ से कोशिश हो रही है इलेक्शन में किस तरह का? पार्टी को तो कोई काम करने दिया नहीं जा रहा। पार्टी पर तो हर किस्म की पाबंदी है। हमारा वर्कर जो है या जेल में है या उसको अंडरग्राउंड होने पर मजबूर किया हुआ है। इसी तरह यहाँ तक कि हमारी जो कमेटीज़ हैं, एपेक्स कमेटी हुई या सेंट्रल कमेटी हुई, उनको भी, उनके मेंबरान भी जो हैं वो भी खुले आम काम नहीं कर सकते। चेयरमैन को और वाइस चेयरमैन को कैद में रखा हुआ है। तो इसलिए तो बहुत बड़ी नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं। लेकिन बहरसूरत ये बात हम वाजे कर देना चाहते हैं, जो जितनी चीज़ें हैं जुल्म और जबर हो, ये पार्टी हर सीट पर इलेक्शन लड़ेगी। अच्छा, खान साहब ये बताएं, भर के हर सीट पर हम इलेक्शन लड़ेंगे। अच्छा, खान साहब ये बताएं कि ये जो आपकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, और जेल में ट्रायल को आप कैसे देखती हैं एज अ कानूनदान भी, और साइफर केस का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? देखिए, ये जो साइफर केस है मेरे नज़दीक तो बनता ही नहीं। ये एक जाली केस है, खामखा का बनाया गया है, इसके पीछे किसी किस्म की भी वाज़े कोई एविडेंस नहीं है। जहाँ तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है, हम समझते हैं कि कोई काबिल कदर नहीं है, और उसमें जो चीफ जस्टिस हैं उनका भी रोल कोई इतना अच्छा नहीं रहा। मुसलसल जो है ये चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ फैसले दे रहे हैं। लेकिन बहरहाल ये मामला हम इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएंगे, और हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा ओपन ट्रायल के बारे में कहा है, चाहे वो जजेस का ओपन ट्रायल हो, जैसे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, उसमें
उसमें 2018 में शौकत सिद्दीकी और फरूख इरफान का मैं वकील था, उसमें भी ये फैसला किया था। तो मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट अपने पहले फैसलों को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ भी ओपन ट्रायल के लिए फैसला देगा। अच्छा खान साहब, ये बताएं कि तहरीक इंसाफ के ऊपर जो गैर एलानिया पाबंदियाँ लगाई गई हैं, सरगर्मियों की इजाज़त नहीं है, क्या आपकी तरफ से कोई इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की जाएगी कि आपको भी आज़ादी दी जाए और आइन और कानून के मुताबिक आपको सियासी सरगर्मियों जलसों की इजाज़त दी जाए? हमारी पिटीशन ऑलरेडी पेंडिंग है और बल्कि 25 मई से पेंडिंग है। इमरान खान साहब इसमें पिटीशनर हैं और हमने ये कहा हुआ है कि जिस किस्म का जुल्म और जबर का इस वक्त माहौल है, ये इस तरह कभी कोई पार्टी को काम नहीं कर सकती। लिहाजा जो लोगों के बुनियादी हकूक़ हैं, जिसका जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो हैं वही सबसे बड़ी डिफेंडर हैं, तो इसलिए हमें इजाज़त दी जाए कि हम पूरी तरह सियासी एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले सकें। जिस तरह दूसरी सियासी जमातें सियासी एक्टिविटी कर रही हैं, हमें भी पूरी तरह से एक्टिविटी में हिस्सा लेने दिया जाए और चेयरमैन को भी रिहा किया जाए ताकि वो इलेक्शन कैंपेन को लीड कर सकें। हामिद साहब, इलेक्शन कमीशन की जानिब से 11 फरवरी की तारीख दी गई इलेक्शन की, खान साहब तक ये खबर पहुंच चुकी है? अगर पहुंच चुकी है तो खान साहब ने कुछ ऐलान किया है, लाएअमल के बारे में कुछ बताया है कि किस तरीके से इलेक्शन कैंपेन की जाएगी? क्या लाएअमल होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? देखिए, बात ये है, पहले जो ऐलान किया गया था उसमें ये कहा था कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में होंगी। आज पता चलता है कि इलेक्शन कमीशन कह रहा है 11 फरवरी की तारीख। इसका मतलब है इलेक्शन कमीशन के लिए दुरुस्त नहीं है, अपनी तारीखें बदल रहे हैं बार बार। हालांकि 90 दिन तो 6 नवंबर को पूरे हो रहे हैं। इन्होंने ऑलरेडी आइन की खिलाफ वर्जी की है। 6 नवंबर के बाद कोई भी डेट देना जो है आइन के खिलाफ वर्जी, लेकिन ये अपनी ज़बान पे भी कायम नहीं है। खुद कह कर के इलेक्शन कमीशन जो है इलेक्शन जनवरी के आखिरी हफ्ते में कराएगी, आज ये फरवरी के मिडल में ले गए हैं। तो क्या एतबार है कि यहाँ भी खड़े रहेंगे कि नहीं? सर, आपने कहा कि पीटीआई हर हल्के से इलेक्शन लड़ेगी, वो एक ही सूरत में पॉसिबल अगर वकाला जो है वो सामने आए। तो क्या खान साहब ने इस हवाले से आपसे कहा कि आप लीड करें पंजाब में या पाकिस्तान में? देखिए, बात यह है कि पार्टी वर्कर्स में हिस्सा लेंगे और पार्टी के वकला का